the house, yeah, that's my clique. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. On the dance floor, nigga doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want to. I hit your ass up, boy, I don't want you. Better listen when I talk, nigga, don't trip. Yo, heat in the car, mine's in this bitch. I ain't tryna beef, I'm tryna get my drink on. And my diamonds, my fitted, and my mink on. I'ma kick it at the bar till it's time to go. And I'ma get shorty in, and I'ma let her know. All a nigga really need is a little bit. Tryna lock baby girl, just a little bit. We can get to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I'm button your pants just a little bit. Take them all, roll them down just a little bit. Get a kiss and a touch in a little bit. Get a lick in it, in a little bit. All a nigga really need is a little bit. Tryna lock baby girl, just a little bit. We can get to the crib in a little bit. I can show you how I live in a little bit. I'm button your pants just a little bit. Take them all, roll them down just a little bit. Get a kiss and a touch in a little bit. Happy Mother's Day, but a divine present in her home of love, strength, and let's welcome Miss Kashri Award for their contribution to the globally recognized performances and dedication both in India and abroad. Ma'am, please come on the stage. Let's give them a big round of applause. BBB family welcomes you, ma'am. Yeah, look at. Honorable Judge Ms. Monica Khan, Director, Co-founder of Sunrise Nest Play School and Daycare. Ma'am, we welcome you to the BBB family. Ready for a big round of applause. Look at. Thank you. Let's give a huge round of applause for our Vice Principal Sir and Vice Principal Ma'am. Yeah, look at. Thank you so much, sir and ma'am. Sir. चलता रहे अंधेरा मिटता रहे चलता रहे अंधेरा मिटता रहे प्रकाश में हम सबको ज्ञान मिलता रहे Vandana dance performance. Let's give a huge round of applause.
लंबी नहीं। Very good. Now next is कितने आदमी थे? Everyone know this answer, no doubt. Okay, so now our bundle of joys are ready. Please come on. Please come up on the stage. I love my mommy
मेरा जू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओह कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। Next dancers, kindly come on the stage. Swati ma'am and Neha ma'am, please assist mothers for fashion show. My sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me to the Riya. love how you put it Riya. on. Got the only key know how to turn it on. Never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Mira que me diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto, besar tu cuerpo todo manuscrito.
Let's give a huge round of applause. Batch number 21. Please come on the stage. Stand up. Wow, what a wonderful song. I request batch number 24. Be ready. Wow. You're begging me to stay. I should just walk away. Took the sword from my heart, got me bleeding Next out. batch number 18. I'm the queen of hearts. Batch number 18. My baby, don't you change the Give a huge round of applause. you change the cards, my baby. 'Cause I tried and I tried, but I'm moving on. And I love you, though you did me wrong. 'Cause I'm the queen of hearts. The queen of hearts, my baby. Batch number 21.
कमलिनी अस्थाना जी और आज की हमारी इस कार्यक्रम की जजेस मोनिका खान जी और इस गाजियाबाद की बहुत ही सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की नेता श्रीमती कमलेश शर्मा जी, विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल रोहित शर्मा जी और हमारी सभी अध्यापिकाएं। आज का जो हमारे ये दिन है कई मायनों में खास है, क्योंकि हमारे बीच में दो महान विभूति आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित है। साथ ही साथ पिछले 3-4 दिनों से हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हमारी सेनाओं के सेनाध्यक्ष चीफ आर्मी स्टाफ जो रोजाना भारत का परचम पूरी दुनिया में बुलंदियों पे फहरा रहे हैं, पाकिस्तान के नापाक इरादों को तिल कर हमारी सेनाएं ध्वस्त कर रही है। हमारी जाबाज जो लड़कियों ने न केवल पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों को उड़ाया, बल्कि उनके नापाक इरादों को भी नेस्तनाबूद किया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में आप सभी ने देखा, टर्की में बने 400 से भी ज्यादा ड्रोन को भारतीय सेनाओं ने मिनटों में ध्वस्त कर दिया। आज इस देश की खूबसूरती और उस देश की सभ्यता संस्कार इतने अच्छे हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो, आज सभी एक सूत्र के अंदर देश के साथ है। यह एक देश की परंपरा है जो हमारे देश को महान बनाती है। हमारी सेनाओं के पराक्रम को देखकर हमारा जो जोश है इन दिनों भारत के बच्चे के अंदर कई गुना है। हिंदुस्तान की आवाम ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने, सबने जो एकजुटता का परिचय देकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह एकजुट हैं। जैसे घर परिवार में होता है ना कि हम सब सास बहू बहनें मिलकर खूब लड़ेंगे आपस में, और जब गली में निकलेंगे ना, अगर किसी ने हमें बोल दिया तो अभी हम लड़कर आ रहे हैं, सब मिलकर मारेंगे उसको। ये काम भारत की आवाम ने करके पूरी दुनिया को दिखाया। एक बार देश के नाम पर जोरदार से ताली बजा दी। परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं मदद को देख रहा था, वो अपने बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। आजकल मैं माँ के रूप में भी चल रहा हूँ और पिता के रूप में भी चल रहा हूँ। एक पिता होते हुए माँ का भी काम कर रहा हूँ और पिता का भी काम कर रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। बेटी के लिए मार्केट से सब कुछ लेकर आना जो एक माँ करती है, तो मैं समझता हूँ माँ का दर्द क्या होता है, पिता का दर्द क्या होता है। व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। माँ को देख रहा था जब वो कर रही थी, वो अपने बच्चों को प्यार करते हुए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई हार और जीत का सवाल नहीं है माँ के लिए, केवल उसके लिए एक बच्चा है। और मैं माँ के जज्बे को सलाम करता हूँ, खास तौर से नारी जगत के लिए। ईश्वर ने क्या कृति बनाई है, कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी सहयोगी के रूप में, कभी साथी के रूप में। मैं हर बार कहता हूँ, जो व्यक्ति समाज महिला की सम्मान नहीं कर सकता, इज्जत नहीं कर सकता, वो दुनिया में व्यक्ति कहलाने के लिए उसके लायक नहीं है। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, जब मैं
मेरे बड़े बेटे की शादी हुई और छोटे की हुई, तो उन्होंने बोला कैसे रहना है। कल भी मैं इनको यही बोल रहा था कि भाई साहब, पत्नी अगर कुछ भी कहे, बुरा बोले, उल्टा बोले, सीधा बोले, डांटे, कुछ मत बोलो, चुप रहो। बहुत प्रेशर होता है, सुबह से लेके हम काम करते हैं रात तक, कभी खाना बनाना, कपड़े धोना, मेहमानों को देखना, सो रहे हैं, कोई मेहमान आ जाए एकदम से चाय बना देना, घर वाले रोते धोते कि खाना ला दे बेटी, पानी ला दे, चाय ला दे। मैं खुद देखता हूँ एक बहुत बड़ा त्याग और तपस्या का कारण रहता है। हमारी टीचर्स है सुबह 7:30 बजे आ जाती है, 4:30 बजे जाती है। अब तो मैंने कॉफी की मशीन भी लगवा दी इनके लिए। बहुत डेडिकेशन और बहुत त्याग और तपस्या का काम रहता है। मैं अपनी बताता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ और करना भी चाहिए। समाज के हर वर्ग को आपके त्याग और तपस्या की कीमत जाननी होगी, उनके मूल्य को जानना होगा। डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लीडर बनते हैं। मैं ये नहीं कहता पिता का योगदान नहीं होता। पिता का अगर 10% है तो मां का 99.9% योगदान होता है। मैंने अनपढ़ माओ को देखा है, मुझे लगभग 35 सालों से टीचिंग का अनुभव है। कुछ नहीं आता, मेरी माँ को कुछ नहीं आता था। जब पढ़ाती थी बचपन में तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, तो सब पता है और उसको कुछ नहीं पता होता था। 8th क्लास में आया तब पता लगा कि माँ तो उनका छाप है, उसको कैक है लिखना भी नहीं आता, लेकिन उसने कभी शो नहीं होने दिया। अनपढ़ होते हुए जो पारिवारिक संस्कार थे, जो पारिवारिक मूल्य थे, जो हमारी परंपरागत आइडियोलॉजी थी, उन्होंने उसका एक उदाहरण देते हुए जो एक नागरिक बनाने के लिए आवश्यक विधाएं थी, उनको पूरा करते हुए वो उस मार्ग पे लेकर चली गई। मैंने उनसे सीखा। जब मैं अध्यात्म के क्षेत्र में गया, दर्शन के क्षेत्र में गया, एक अनपढ़ होने के बावजूद भी जो एक दार्शनिक विचारधारा थी, जो एक आध्यात्मिक विचारधारा थी, जो एक दर्शन की विधाएं थी, जो एक सत्य की खोज थी, जो मीमांसाओं का मूल्यांकन की आवश्यकताएं थी, परंपरागत रूप में आ गई, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ गई। उनका ज्ञान मिला, जीवन को कैसे जीना है, सरलता से जीना है, किस सत्य मार्ग पे चलना है, ये एक माँ ही बता सकती है। और इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप किताब पढ़ के नहीं कर सकते। ये परंपरागत रूप से आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी मदद से कि आप अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। आप उसको क्या बनाना चाहते हैं? आप निश्चित जीवन में सफल होंगे, ये मेरा निजी अनुभव है। मैं 12 साल की उम्र में अपनी माँ से कहता था, माता जी मुझे नेता बनना है। शौक था। उस समय इंदिरा गांधी जी को बहुत करीब से देखा, मन में एक चाह थी उनके प्रति कि लीडर बनना है, ऐसा बनना है। लीडर बना, इलेक्शन भी फाइट किया, बहुत अच्छे से किया। हार जीत एक अलग फैसला है, लेकिन मन में जो 12 साल की उम्र में सोचा था वो किया। ये सोचा कि खूब पढ़ाई करनी है, खूब पढ़ना है। माँ कहते थे पढ़ेगा बेटा, डबल MA किया, M.Ed किया, B.Ed किया, PhD किया, खूब पढ़ाई की और बड़ा हंस के इंजॉय करके। आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। कमलेश जी बैठी है, समाज के क्षेत्र में लगी रहती है, कोई भी पहुंच जाए, दिन में, रात में, गली में, मोहल्ले में,
गरीब आदमी अमीर आदमी कुछ नहीं देखती, एकदम से चल पड़ती है, दौड़ लगा देती है, बच्चों को भी नहीं देखती। इनको कह नहीं रहा, ये अंदर से एक संस्कार पैदा हो। अर्थानंद जी मैडम हमारे बीच में, एक संस्कार मन में भाव बचपन से पैदा हुआ, सम्मान की उच्चतम शिखर से उन्होंने छुआ, पद्मश्री। कोई आप मामूली बात नहीं है, सोचना भी, हम जैसे आदमी की सोच भी बहुत हो जाती है। एक बहुत डेडिकेशन चाहिए, ये काम आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी इच्छा शक्ति, दृढ़ता, मेहनत, इसके लिए सोच, बहुत कार्य हमें करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि विद्या बाल भवन स्कूल के पढ़ने वाले छात्र, पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं और माता पिता, हम सब मिलकर जिस भी विधा में काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके अंदर पूरी हमारी दक्षता होनी चाहिए और उसी क्षेत्र में रहते हुए हम अपने कार्य को उच्चतम शिखर पर लेकर जाए। मेरी ऐसी हमेशा सोच रहती है। और विद्या बाल भवन स्कूल के अंदर हमारी जो फैकल्टी है, हमारी टीचर्स हैं, हम प्रतिदिन नया नया अनुभव करते हैं, रोजाना नए अनुसंधानों की तरफ बढ़ते हैं और प्रतिदिन नए नए चैलेंजेस हमारे बीच में आते हैं। और चैलेंज ऐसे होते हैं कि हर दिन नया होता है, आप सोच भी नहीं सकते। स्कूल के बात बता रहा हूं मैं, स्कूलों में रोजाना नई चुनौतियां आती हैं। बिना डांटे बच्चा हो जाता है, बिना डांटे टीचर हो जाती है, बिना गलती के बच्चा झूठा नाम लगा देता है कि इंटरव्यू को मार दिया बच्चे ने। मेरे ग्रांट सर ने, मैंने कुछ नहीं किया, अपने घर में लेटा हुआ था, जाके अपनी माँ को बोल दिया कि दादाजी ने मारा। मैंने कहा तो कब मारा? कह रहा मुझे ऐसा लगा था मार दोगे, पीटोगे। भाई हाथ ही निकल आया। एक नया चैलेंज है ना ये। और समाज के अंदर एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन बना के हमें कार्य करना होता है। उस कोऑर्डिनेशन, उस तालमेल को बनाते हुए हम एक अच्छा समन्वय बनाकर इस समाज को एक अच्छी दिशा और दिशा प्रदान कर सकते हैं। मैं आपको बहुत देर बात करना चाहता था, क्योंकि समय का अभाव रहता है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और हमारे मुख्य अतिथि जी को भी यहाँ से इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए आगे की व्यवस्थाएं भी देखनी है। तो वो मेरे बाद आपको संबोधित करेंगी। मैं उनका यहाँ पर सम्मान करता हूँ। मोनिका जी हमारे बीच में, उनका भी सम्मान करता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। और खास तौर से हमारी जो पेरेंट्स हैं, जिन्होंने सुबह से अपने बच्चों के लिए यहाँ पे लंबा इंतजार किया, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम सब एक प्रण लेकर आज यहाँ से जाएंगे। हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में पारंगतता, अच्छा खाना बना सकती हो तो उसको और अच्छा खाना बनाना है। अच्छे बर्तनों को साफ कर सकते हो तो उसको और अच्छे से करना है। अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं तो उसको और अच्छे से चलाना है। और घर में अपने पति जी को अगर आप डांटते हैं तो उनको बहुत इज्जत और प्यार से डांटना, गुस्से में नहीं डांटना। कुछ नया हमें सृजन करना है और बच्चों के लिए और अच्छे से उनकी उन्नति, उनकी कामना के लिए हमें कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। For your heartwarming words and guiding us, we are delighted to have a principal like you. Please have a big round of applause for Hansel sir. Now I would like to invite a respected guest, Miss Monica Khan.
word. Please give a huge round of applause. That word is divine. And mother, for a mother, we cannot define a mother. There is no definition which defines a mother. But a huge round of applause to each one of you present here. All I would want to say is, I was watching the kids perform. They were fabulous. और वो क्या है, वो एक रिसेप्शन है उनकी मदर से. So a great, I would say a great kudos. I would say kudos to all of you. You are incredible and you are fabulous. Just give a pat yourself and always do your best. Thank you so much. Kamalini and Nalini Asthanaji, please come up on the stage. Please come up on. BBB family welcomes you, ma'am. सुंदरता की देवी नारी शक्ति इस स्कूल के प्रोप्राइटर और प्रिंसिपल हरिधर शर्मा जी और सबको नाम से तो नहीं जानती, लेकिन जो भी सबको आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन, हृदय से अभिनंदन। मैं नियति पे बहुत विश्वास रखती हूँ और आज की नियति को हमें ऐसा बात भी किया था, हमें यहाँ आना है। इसमें जब तैयार हो रहे थे तो न्यूज़ लगा देते हैं, तो ज्योतिष जी कुछ बोल रहे थे भविष्यवाणी। मेरा जब आया तो उसमें था कि आज का दिन आपका बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बीतेगा। तो यहाँ आके लगा कि वो परसेंटेज जो 90 हो रहा था, जीवन में हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। ईश्वर हमारे लिए एक पात्रता ढूंढता है और हम बाद में हो जाते हैं उस पात्रता को निभाने के लिए, और कितनी अच्छी तरीके से उस पात्रता को निभाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। निर्विशेष से संबंध है, इसलिए बताती हूँ। हम संसार को एक रंगमंच मानते हैं, उसमें भी हमें एक पात्रता मिलती है जितने रंगमंच में है। उस पात्रता को हम जितनी बहुरूपी से सुचारू रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो हमें एक अच्छा कलाकार कहा जाता है। पाँव कहीं और जा रहे होते हैं, लेकिन उससे जो हमारी राह चुनी होती है वो हमारे लिए ही बनी होती है, क्योंकि उसने सोचा है। ईश्वर की रचना में नारी और पुरुष एक दूसरे की पूरक है, इसलिए अर्धनारीश्वर का एक महत्व है। हमारे शरीर में अंग जो है वो जहाँ पे कोमलता का परिचय देता है वो नारीत्व मानते हैं, और जहाँ हम दूसरे रौद्र रूप में होते हैं या वीर रस में होते हैं उसे हम पुरुष मानते हैं। राइट हैंड उतना काम कर लेता है जितना लेफ्ट नहीं करता, लेकिन हम कलाकार अभ्यस्त होकर दोनों को बराबर कर लेते हैं। इसलिए कला का जो मर्म है वो सामान्य जीवन से ज्यादा माना जाता है। जो चीज नहीं है उसे भी करने की हम प्रयास करते हैं। भाव, विचार, अभिव्यक्ति, तीन चीजें जीवन में रहती हैं। भाव रहती है, विचार भी है, लेकिन उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम आप कौन सा ढूंढते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। नारी की देह हमको मिली, ये ईश्वर की कृपा है। और हम जब आज मदर्स डे पे नमन कर रहे हैं तो ना हम केवल उन माँ को कर रहे हैं जिन्होंने जन्म दिया है, लेकिन उन्हें भी कर रहे हैं जिनके अंदर मातृत्व है वो माँ नहीं है, वो छोटी बच्ची की हो सकती है। क्योंकि जब हम पात्रता की बात करते हैं, गिलास है वो गिलास ही रहेगा। अगर उसमें दूध डाल देंगे तो बोलेंगे दूध का गिलास है, क्योंकि उसकी पात्रता जो हुई वो दूध की हो गई है। पानी है तो पानी का है। तो माँ के अंदर जब तक मातृत्व नहीं होगा वो माँ कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज है नारी देह में मातृत्व का होना, उसके भाव का होना बहुत आवश्यक है। हमारा सौभाग्य कि हम भारत जैसे देश में है जब नारी के चरित्र को हम पहनावे से, बोलचाल से, अधिकार से, अभिमान से, स्वाभिमान से ग्रहण कर सकते हैं। और सब देशों में जाइए तो दूसरे कई बार तो देखने में पता नहीं चलता है कि लड़का है या लड़की। तो एक सौभाग्य हमारा ये है। इतने रंग तो शायद प्रकृति में भी नहीं जितने हम लोगों ने अपने अंदर उतारे हैं। ये भी नारी का परिचय है, विभिन्नता, और विभिन्नता रहते हुए भी उसमें क्या हमारे ऊपर अच्छा लग रहा है हम वो चीज सोचते हैं। सबसे अच्छी बात जो है नारीत्व में वो है
समर्पण की भावना हमारे पास है भी और दूसरे को आवश्यकता है। तो मातृत्व की बहुत आवश्यकता है। हम अपने लिए नहीं रखते, दूसरे के लिए करते हैं। इस तरीके से हम उसे जीते हैं, हम दूसरों को पता नहीं करने देते। और इस वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल इन द लाइफ, फैमिली लाइफ में जिसे आप कहते हैं, तो पहली चीज है वो हमारा सौभाग्य है। सबसे बड़ी माँ है जिसने हमें जन्म दिया, आपकी माँ है, आपकी भी माँ है। दूसरी माँ है देवी, जिसकी शक्ति हमारे साथ सदैव रहती है। अगर शक्ति ही हो जाएगी तो हम उस देवी रूप को अपने अंदर अनुभव नहीं करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है भारत माँ, जिसके यहाँ हम जन्म लेते हैं और अपने अस्तित्व को, अपनी सोच को, अपने परिवार को एक साकार देते हैं। तो मैं तीनों माँ को नमन करती हूँ। एक मेरी माँ जिसने मुझे जन्म देके मेरी पहचान बनाई, दूसरी शक्ति के रूप में जो सदैव मेरे साथ रहती है, उनका अस्तित्व है, सरस्वती का अस्तित्व है। और तीसरी है भारत माँ, जिसे हम माँ के रूप में पूछते हैं। उसके ऊपर हम हमेशा हम चलते हैं, पहला पाँव उसी के ऊपर हम रहते हैं। और वही हमें खाने को देती है, वही हमारा जीवन पोषण करती है। और उस माँ को नमन करते हुए आज इस मदर्स डे पे हम उन सभी माँ को कहते हैं, आप अपने दायित्व को स्वयं उजागर करके रखिए। किसी से वोट करने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष की बराबरी, जब आप बराबरी करने की सोचते हैं तो नीचे हो जाते हैं। हम जैसा दूसरा बने, दूसरे के जैसे हम क्यों बने, और हमें उसकी अच्छी आदत नहीं होगी तो हम चुपचाप ले लेंगे, क्यों उसको नीचे दिखा के होंगे। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। नारी को मानना है धरती का रूप और आकाश को पुष्ट कर, कहते हैं आस, इसमें ध्यान दीजिएगा, हो नहीं सकता, छू नहीं सकता। आसमां जितना भी पुरुष, आसमां जितना भी झुके, जमीन हो नहीं सकता, जमीन जितना भी टूटे, आसमां छू नहीं सकती, मगर फिर भी साथ साथ चलते हैं। मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। जमीन नहीं मिलेगी जहाँ पे आसमान नहीं होता, भी आसमान नहीं मिले, मैंने दोनों की पूरा नेवर हमें फ्रॉम ईच अदर, पर मीठे हुए नजर आते, क्षितिज महज एक होता है। बिछुड़कर कभी किसी से कौन चैन से सोया है, और शब्दों का हर टकरा इस बात की देता है। धरती में अपना आंचल का आंसुओं से लगता है आसमान गिरा। आप सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा सोचिए, you have to be true to yourself, not for others. सच्चाई अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। आप स्वयं सब बनते चले जाएंगे और कोई भी काम वो मत करिए जो आप दूसरों से नहीं चाहते हैं। आपके बच्चे की आधी शिक्षा तो आपको देख के हो जाती है। जैसे अभी शर्मा जी बोल रहे थे, मेरी बात सुबह उठने के साथ ही जो भजन चीजें बोलती थी, हमें उसके मायने नहीं पता थे, लेकिन मुझे 5 साल की उम्र में भगवान सब याद हो गए थे। क्योंकि स्वर में एक अच्छाई है, वो दूर से भी आप तक पहुंचता है। किसी चीज के सीखने के 4 चरण हैं। पहला है अक्षर ज्ञान, जो आपके सामने रहता है, आप बच्चों को भेजते हैं ABCD का या कोई भी शब्द। दूसरा है सानिध्य, जो आप एसोसिएशन से सीखते हैं, जिसके साथ रहते हैं। उसके बिना सिखाए बहुत सीख जाते हैं बच्चे। जैसे अभी शर्मा जी बता रहे थे, मेरा छोटा भाई शैतानी करता था ना, कई बार घुटने में हाथ रखे कहता था मेरी छाती में काट दिया, उसे ये नहीं पता था छाती क्या होती है। वही बात से कह रहे बच्चे भी बहुत। तीसरा है अनुभव, जो एज के साथ आता है। आप किसी के आजकल क्या चीज नेगेटिव है, आप ज्ञान को ले लेते हैं गूगल के माध्यम से, लेक्चर करते हैं अनुभव। इसलिए अभी भी टीचर और बच्चों में, अध्यापक और गुरु में और बच्चों में फर्क रहता है, वो अनुभव। और चौथा है संघर्ष, जो आपकी पहचान का जो जीवन का अंत तक चलता है आपके साथ। तो 4 चरण जो है, अक्षर ज्ञान, सानिध्य, अनुभव और संघर्ष, इस सबको जोड़ के रखिए। कोशिश करिए जो आप बनाना चाहते हैं उस पात्रता को अपने अंदर उतारिए, तो दूसरा देख के आप उस टाइम में आप जैसा बनने का प्रयास करिएगा और अपने संघर्ष में भी बन चुकिए। यही एक सोच हमारे बनी रहेगी। मैं दुनिया भर में जहाँ पे भी गई हूँ, मैंने देखा है भारतीय नारी और भारतीय पुरुष से अच्छा कोई समाज बांधने में आज तक किसी तरीके से भी उस स्टेटस में नहीं आया जिस तरह से भारतीय समाज बनता है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ है नारी का। पुत्र से परिवार,
परिवार से कुटुंब से समाज और समाज से देश का निर्माण होता है। जीवन की सबसे बड़ी एक उपलब्धि है वो है समाज, और समाज की सबसे बड़ी देन है संबंध, जिसको नारी भी बना के रखती है। इस संबंध को बनाए रखिए, खुद से आत्मा का संबंध, खुद से व्यवहारिक संबंध, अपने रिश्ते का संबंध और देश से आपका संबंध, ये आपकी पहचान बनाएगा। नमस्कार, जय हिंद और हिंद दिवस। Mrs. Anjana from Band Show, please come up on the stage, ma'am. Stomach tight होगी? कोई बात नहीं। देखो, हाथ खोलो। खाया पिया बचाया, इससे तुम्हारी तकलीफ नहीं हो जाएगी। देखो कोई तकलीफ हाँ, हाथ खोला, अनार डाला, बहुत सारे फ्लेवर्स में अपने बने। खाओ पियो बचाओ। Thank you. Wow, what a wonderful talking. Mrs. Kavita Singh. Mrs. Kavita Singh. Kavina. Mrs. Kavina. Please ma'am come on the stage. मेरा गला एक्चुअली थोड़ा खराब है, तो खांसी भी आ सकती है। प्लीज आप लोग आप बहुत अच्छा करेंगे।
का वो पाँव आप देखना comes later. Participation is what should always be encouraged. And, I could see a wholehearted participation in full spirits. So, let's give ourselves, all of you, a huge round of applause. And now, since it was labeled a competition, so then definitely we have to have the titles. I guess there were 2 titles. One was for the Best Hairstyle, and the winner of the title is Mrs. Pinky. Mrs. Pinky, please request Mrs. Say, congratulations to you. Thank you once again. What is not here? Ritika Goyal and Nitya Goyal. Let's give a huge round of applause. We
मुझको जंगली कह दे सारा जहां हमें फिर मैं दिल टूटे चाहूं या तो दिल करे हमें फिर मैं दिल टूटे चाहूं या तो दिल करे बदन में सितारे लपेटे हुए हर जन्म में रंग बदल के आंखों के पर्दों में हम मिल गए हम है राही प्यार के दिल मिलेंगे चलते चलते पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही जरा पास आओ तुझे ना जाए जरा पास आओ तुझे ना जाए बुलंद पे सितारे लपेटे हुए जान तमन्ना किधर जा रही जरा पास आओ तुझे ना जाए जरा पास आओ तुझे ना जाए है बनने संवरने का जब ही मजा कोई देखने वाला फन में तो नहीं तो ये जलवे हैं पूछते भी है कोई मिटने वाला एक फन में तो बदन पे सितारे लपेटे हुए अजान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तुझे ना जाए जरा पास आओ तुझे ना जाए बदन पे सितारे लपेटे हुए अजान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तुझे ना जाए जरा पास आओ तुझे ना जाए बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गाल पे काला काला बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल जरा बच के रहना चाहिए जरा बच के रहना चाहिए मेरी अदा भी है कातिल बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गोरे गोरे गाल पे काला काला बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल
बच गई कैसे कोई हट गया मन से बट अंजा वो नीले रंग सा रूप रंग रंग समाधि प्रेम भंग अंग अंग फिर मन रंग और रंग रंग मैं संग समाना मुरली की सुर राधिके मुरली की सुर राधिके मुरली की सुर राधिके झूले सांस सांस में भूल के झूले सांस सांस में भूल के करने प्रेम का गीत का मोहना शब्द मुरली की सुर राधिके
tease. She know how I feel. I saw shorty, she was checking up on me. From the game she was spitting in my ear, you would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. She said, come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I told her, I said, just as I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me. Now I'm out here single.